ناول مالا، جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد. اس ناول کی یہ 4 ایپیسوڈ ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں. براؤنی ہاتھ میں لیے وہ ٹیرس پہ آ گئی. اس نے ابھی تک وہاں کی بتی نہیں جلائی تھی. بالوں کا ڈھیلا جوڑا کھل گیا تھا اور اب وہ اس کے کاندھوں پر بکھرے تھے. ٹیرس گیلا تھا، بلکہ ٹیرس کیا ساری کالونی گیلی تھی. جگہ جگہ جلتے اسٹریٹ پولز رات کا اندھیرا دور کرنے میں ناکام تھے. وہ ریلنگ کے ساتھ کھڑی تازہ ہوا کو سانس کے ذریعے اندر اتارنے لگی. ذہن پھر سے ظہیر کی طرف چلا گیا. قانونی طور پہ ظہیر نے کچھ غلط نہیں کیا تھا اور اخلاقی طور پہ اس نے کچھ درست نہیں کیا تھا. نیچے سے آتی آوازوں نے اس کا دھیان بٹا دیا. اس نے گردن جھکا کے جھانکا. نگینہ آنٹی لوگ پورچ میں کھڑے تھے، غالباً رخصت ہو رہے تھے. ممانی اور ماموں ان کو سی آف کرنے گیٹ تک آئے تھے. نگینہ آنٹی سر پر سفید دوپٹہ لیے ہوئے تھی، کاندھوں پر شال تھی، باوقار سی لگتی تھی. مالا نے بہت عرصے پہلے ان کو دیکھا تھا. ان کے بارے میں ہمیشہ یہی سنا تھا کہ وہ بہت نیک خاتون ہیں، جن کا ایک فرمانبردار بیٹا ہے جو اسے یاد نہیں تھا. وہی بیٹا اس وقت ماں کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا. اس کی کشمالہ کی طرف پشت تھی. اس نے گردن مزید اونچی کر کے دیکھنا چاہا. وہ دروازہ بند کر کے کار کی دوسری جانب گیا. سینے پہ ہاتھ رکھ کے ماموں کو ایک دفعہ پھر خدا حافظ کہا اور ڈرائیونگ ڈور کھولا. اب اس کا چہرہ مالا کے سامنے آیا. وہ کافی دراز قد تھا، بال سلیقے سے سیٹ تھے. جینس پہ سفید ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی جس کی آستین کف سے فولڈ کیے ہوئے تھی. سانولی رنگت اور پرکشش نقوش ایسے کہ نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی. وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سارے مسئلے بھول کے اس کو دیکھے گئی. ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم. اس کے ذہن میں یہی الفاظ آئے تھے. یہ تو تھا زیاد سلطان انٹرسٹنگ. دروازہ کھولتے ہوئے زیاد کی نظر اوپر اٹھی، جیسے اسے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے. وہ جو ایک ہاتھ ریلنگ پہ جمائے دوسرے سے براؤنی کھا رہی تھی، گڑبڑا کے جلدی سے پیچھے ہوئی. دل زور سے دھڑکا. اف، کتنا برا لگا ہوگا. مگر نہیں، ٹیرس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، زیاد کو نظر نہیں آیا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، اس نے خود کو تسلی دی. گاڑی کے ٹائر باہر نکلنے کی آواز آئی تو وہ واپس سیدھی ہوئی. پھر ٹیرس کی بتی جلائی اور اندر آ گئی. آپ آج جلدی میں چلے گئے، اس لیے پوچھ نہیں سکا. اندر آ کے موبائل اٹھایا تو کیف کا میسج سامنے تھا. صبح کتنے بجے کام پہ آؤں؟ ذرا دیر کے لیے وہ اپنا غم بھولی تھی. ایک دم سے سب تازہ ہو گیا. اس نے 9 بجے لکھ کے بھیج دیا. اسے صبح ایک دفعہ پھر اوشن جانا تھا. وہ صوفے پہ التی پلتی کیے بیٹھی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ لیا. اسے وہ کنٹریکٹ پڑھنا تھا جو ظہیر نے اس کے ساتھ کیا تھا. اسے یاد تھا کہ وہ بنا 3 ماہ کے نوٹس کے اس حجاب سے نہیں نکال سکتا تھا. اگر وہ نکالتا تھا تو اسے کتنا مداوا بننا تھا. وہ ظہیر سے لڑائی نہیں کرے گی، نہ وہ اس پہ چیخے چلائے گی یا اس کو الزام دے گی. یہ اس کی فطرت میں نہیں تھا، لیکن وہ اسے اپنا حق ضرور لے گی. اگلی صبح گزشتہ روز جیسی ہی روشن اور خوبصورت اتری تھی، لیکن کشمالہ مبین کے لیے سارا شہر بے رونق اور اداس ہو گیا تا. وہ کاغذوں کا پلندہ لیے صبح ظہیر کے آفس میں گئی اور دروازہ بند کر دیا. اسٹاف اور ویٹرز آس پاس ستونوں اور دیواروں کے پیچھے کھڑے ہو کے سننے لگے. سارا ماحول سہما ہوا اور اداس تھا. کیف اس کے انتظار میں بار کاؤنٹر کے ساتھ اونچے اسٹول پہ بیٹھا تھا. کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھے کافی مگ میں چمچے ہلاتے ہوئے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا. جب سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی، اس نے نظریں اٹھا کے دیکھا. وہ زینے اتر رہی تھی. اس نے آج سیاہ لمبی قمیض کے ساتھ سفید دوپٹہ کاندھے پر ڈالا ہوا تھا. بالوں کا جوڑا بند تھا اور ایک لٹ دائیں گال کو چھو رہی تھی. آج اس نے ٹاپس نہیں پہنے تھے. پیروں میں سفید ہیلز تھیں اور پیشانی پہ ابھی تک بل تھا. چہرہ تمتمایا ہوا تھا. ہاتھ میں ایک باکس تھا جس میں اس کی چیزیں تھیں. سب سے اوپر کیکٹس کا ننھا سا گملہ تھا. وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ سے باکس لے لیا. تھینکس. اس نے ایک سرسری نظر کیف پہ ڈالی. اس کے نئے جوگرز آج بھی اجلے سفید تھے، البتہ خلیہ وہی تھا. بڑی شو ماتھے پہ آئے 9 عمر لڑکوں جیسے بلدار وال ٹی شرٹ پہ کالر والی شرٹ جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے. چہرے پہ مسکراہٹ اور ہاتھ پیچھے کو بندے ہوئے. یس باس، مجھے مال تک جانا ہے، تم ڈرائیو کرو گے؟ کار ریموٹ اس کی طرف بڑھایا اور خود آگے بیٹھ گئی. کیف باکس اٹھائے اس کے 2 قدم پیچھے تھا. یکدم کشمالہ کو احساس ہوا کہ وہ رک گیا ہے. اس نے پلٹ کے دیکھا. وہ ریسٹورانٹ کے ہال کی مرکزی دیوار کے سامنے رکا ہوا تھا. گردن اونچی اٹھائے وہ دیوار کو دیکھ رہا تھا. وہ دیوار بذات خود ایک پینٹنگ تھی. وہاں ایک منظر بنا تھا، ساحل کی ریت، پیچھے نظر آتا نیلا سمندر جس کی سطح پہ دھوپ چمک رہی تھی. ایک جھولا جو ریت پہ ستونوں سے نصب کیا گیا تھا. جھولے پہ ایک کتاب درمیان سے کھول کے الٹی رکھی تھی. منظر اتنا خوبصورتی سے پینٹ کیا گیا تھا کہ حقیقت کا گمان ہوتا تھا. دیوار کے آگے فرش پہ اصلی ریت. وہ صرف پینٹنگ نہیں تھی، 3D پینٹنگ تھی. کیف کی نظریں دیوار کے نچلے کونے تک گئیں. وہاں مالا کے نام سے دستخط تھے، ساتھ 5 برس قبل کی تاریخ درج تھی. اس نے گردن موڑ کے ستائشی نظروں سے مالا کو دیکھا جو اس کی منتظر کھڑی تھی. یہ آپ نے پینٹ کیا ہے؟ چلیں. وہ بنا کسی تاثر کے بولی اور دروازے کی طرف اشارہ کیا. وہ گہری سانس لے کر اس کے ساتھ ہو لیا. آپ الورجن آرٹسٹ بھی ہیں؟
مجھے اندازہ نہیں تھا وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پرانی بات ہے، وہ جیسے اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ کیف خاموش ہو گیا۔ راستے میں وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ ایک دو بار نگاہ اٹھا کے کیف کی طرف دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے بیٹھتے ہی بیک ویو مرر کو چھت کی طرف کر دیا تھا تاکہ ڈرائیور اور سواری ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ سفورہ درست کہہ رہی تھی، اس کا کزن ڈیسنٹ ہے، ورنہ ہر ڈرائیور بیک ویو مرر سے ضرور گزرتا تھا۔ تم ڈرائیورز یونیفارم نہیں پہن سکتے؟ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب بے نیازی تھی جو کبھی کبھی کشمالہ کو کھلتی تھی، لیکن خیر وہ باہر بھاگتی ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ دھوپ کی پیاس سبز آنکھوں کی پتلیاں سکڑ رکھی تھی۔ بس اب آپ کیا کریں گی؟ اپنے جاب آورز کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ کل ہمیں لاہور جانا ہے، 1 ہفتے کے لیے۔ مال کی پارکنگ میں کیف نے کار روکی تو باہر نکلنے سے قبل مالا نے سرسری انداز میں کہا، مجھے گھنٹہ لگ جائے گا، چاہو تو گھوم پھر لو، چاہو تو بیٹھے رہو۔ کیف نے محض سر ہلا دیا، کچھ کہا نہیں۔ کچھ دیر وہ یوں ہی مال کی راہداریوں میں چلتی رہی۔ دن کا وقت تھا، اس لیے بہت رش نہیں تھا۔ اسے ایزا کے لیے گفٹ لینا تھا، لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پہلے جب کبھی وہ خاندان کی شادیوں پہ جاتی اس کو سیلیبریٹی ٹریٹمنٹ ملتی۔ کشمالہ ان سب کی کامیاب انٹرپرینور کزن تھی، اپنے پیروں پہ کھڑی عورت۔ وہ مہنگے گفٹس دیتی تھی، لوگوں سے ملتے ہوئے بھی ہاتھ میں موبائل آن ہوتا۔ وہ ساتھ اسلام آباد آفس کو مانیٹر کر رہی ہوتی تھی۔ اب اس کے پاس کچھ کرنے کو ہی نہیں تھا۔ سوشل میڈیا سے جلدی ہی سب کو علم ہو جائے گا کہ اوشن بند ہو رہا ہے، ہر کوئی اس سے سوال کرے گا۔ وہ اپنی کیفیت میں چلتی جا رہی تھی جب ایک احساس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ چلتے چلتے اس نے گردن موڑی، دائیں بائیں پیچھے وہاں بہت سے لوگ تھے، لیکن سب اپنی اپنی سمت میں جا رہے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر جھٹکا، شاید اسے وہم ہوا تھا۔ ایک ڈیزائنر برانڈ سے اس نے ایک کرامت جوڑا لیا، ایزا کے ٹیسٹ کے مطابق ٹھیک تھا۔ شاپ سے باہر نکلی تو سیدھ میں ایک بک شاپ نظر آئی، اس کی گلاس وال کے اس پار کیف کھڑا تھا، وہ کاؤنٹر پہ پیمنٹ کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف چلی آئی، کیف نے اسے نہیں دیکھا، اس کی کشمالہ کی طرف پشت تھی۔ وہ موبائل کان اور کاندھے کے درمیان لگائے شاپنگ بیگ کاؤنٹر سے اٹھا رہا تھا، دبی آواز میں کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ کچھ سنائی نہ دیا، نہ وہ سننے کی خواہش مند تھی۔ کیف اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے پکارا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے مڑا، موبائل چھوٹ گیا، شاپنگ بیگ بھی نیچے گر گیا۔ وہ ڈر کے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ سوری، میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ نہیں، میں کسی اور خیال میں تھا۔ کیف کی رنگت تبدیل ہوئی، جیسے وہ لمحے بھر کے لیے پریشان ہوا ہو۔ سے سنبھل گیا، جلدی سے موبائل اٹھانے جھکا جو کشمالہ کے قدموں کے ساتھ گرا تھا۔ اس نے گردن جھکا کے دیکھا، اس پہ کال ملی ہوئی تھی، وائٹ ہیئر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیف نے جلدی سے فون اٹھایا اور کال کاٹ کے اسے جیب میں ڈال دیا۔ میرا ایک انکل ہے، اس سے بات کر رہا تھا۔ اب وہ پنجوں کے بل بیٹھا شاپنگ بیگ سے نکلا سامان اندر واپس ڈال رہا تھا۔ میں فری ہوں، چلیں۔ اس نے نظر انداز کیا، البتہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ایک اسکیچ بک اور چند گریفائٹ پینسلز تھیں جنہیں وہ جلدی سمیٹ رہا تھا۔ پھر وہ کھڑا ہوا، نظر کشمالہ کے ہاتھوں پہ گئی، فوراً ہاتھ بڑھایا۔ یہ مجھے پکڑا دیں۔ نو پرابلم، میں اٹھا سکتی ہوں۔ وہ آگے جانے لگی، لیکن کیف سامنے آیا اور ادھر لائیں کہتے ہوئے نرمی سے اسے شاپنگ بیگ لے لیے۔ وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی، لیکن اسے اچھا لگا تھا۔ اس نوجوان میں بہت مینرز تھے، بس یونیفارم والی بات پہ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں والا ایٹیٹیوڈ نہ ہوتا تو وہ بہترین ملازم تھا۔ کشمالہ کے تجربے کے مطابق ایٹیٹیوڈ والا ملازم زیادہ دیر تک ملازم نہیں رہ سکتا تھا۔ دیکھتے ہیں یہ کتنا عرصہ ٹکتا ہے۔ کافی لیں گی؟ لفٹ کی طرف جاتے ہوئے کیف نے پوچھ لیا۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا۔ ہاں، میرے لیے ایک ایسپریسو ڈبل شاٹ، رائٹ؟ وہ پرس سے کارڈ نکالتے ہوئے چونکی، ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ تمہیں کیسے معلوم میں کیسی کافی پیتی ہوں؟ آپ کی اسسٹنٹ سائیکا سے پوچھا تھا۔ وہ مسکرایا، گال کا گڈھا گہرا ہوا۔ نہیں، میں تمہیں اپنا اسسٹنٹ نہیں رکھنے لگی، حالانکہ آپ کو ایک نئے اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے ہاتھ سے کارڈ اچکتے ہوئے مسکرا کے بولا، سائیکا کو اوشن جیسی تنخواہ دینا آپ افورڈ نہیں کر سکتی۔ جلد یا بدیر آپ کو کوئی نیا کام شروع کرنا ہوگا، اس وقت کم تنخواہ پہ اگر کوئی دستیاب ہے تو میں ہوں۔ کافی لاؤ، شاباش۔ ابرو سے اشارہ کیا، وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کیف نے اسے گھر ڈراپ کیا تو وہ اسے صبح جلدی آنے کی ہدایت دیتے ہوئے کار سے نکلی، پھر شاپنگ بیگز لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں گیٹ کے اندر کھڑا موبائل پہ اپنے لیے رائڈر بک کروانے لگا۔ اس وقت گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تھا، ممانی ورکنگ وومن تھی، بچے اسکول کالج والے تھے۔ وہ بیگز لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی، اوپر ٹیرس تک آئی تو رک گئی۔ بیگز وہیں فرش پہ رکھ دیے، گردن موڑ کے پیچھے دیکھا، وہ موبائل کان سے لگائے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسی پل چہرہ اٹھا کے اوپر دیکھا، کشمالہ کے چہرے کی پریشانی وامپ کے وہ الرٹ سا ہوا۔ موبائل نیچے کیا اور سوالی انداز میں ابرو اٹھائے، ادھر آؤ۔ اس نے 2 انگلیوں سے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اندر آیا، سیڑھیاں 2 کر کے پھلانگی، انداز جو کرنا تھا۔ ٹیرس کے دہانے پہ آ کے وہ رک گیا، نظریں فرش سے ہوتی ہوئی داخلی دروازے تک اٹھتی گئیں۔
तुम ने पूछा था ना मेरे पिछले गार्ड्स जॉब क्यों छोड़ जाते हैं, ये है उसकी वजह। कश्माला ने फर्श की तरफ इशारा किया। सीढ़ियों के एहतमाम पे खून पड़ा था, बहुत सा खून, जैसे किसी ने प्याला भर के अंडेल दिया हो। खून के छींटे दीवार पर भी आए हुए थे, वो भी अभी तक गीला था। क्या ये पहले भी कभी हुआ है? वो एहतियात से पैर बचाते हुए ऊपर आया, फिर एक जगह इकट्ठे हुए गीले खून के साथ पंजों के बल बैठा, गर्दन झुका के गौर से उसे देखा। एक गार्ड ने इसी वजह से जॉब छोड़ी थी, और दूसरे ने इसके लिए कि किसी ने पत्थर मार के मेरी कार का शीशा तोड़ दिया था, और तीसरा वो गर्दन झुकाए खून का मायना कर रहा था। उसको मैंने खुद निकाला था, स्मोकिंग करता था। उसने बेचैनी से खून आलूद फर्श को देखा। अजीब वहशत हो रही थी वो सब देख के। फिर उसने देखा पंजों के बल जमीन पे बैठा कैफ खून की तरफ उंगली बढ़ा रहा था। हाथ मत लगाओ इसे, पता नहीं किसका खून है। कैफ ने आंखें उठा के इसे देखा, बोला कुछ नहीं, वापस सर झुकाया। वो 2 उंगलियां खून में डुबोई, फिर सुर्ख पोरों को चेहरे के करीब लाके सूंघा। उसके बाद उसे अंगूठे और उंगलियों के दरमियान मसला, जैसे कपड़ा मसल के चेक करते हैं। ये खालिस खून नहीं है, इसे पतला किया गया है। वो चौंक गई। पतला क्यों? ताकि ये जल्दी खुश्क ना हो और आप के पैरों के साथ लग जाए। असल खून जल्द गाढ़ा होके जम जाता है। कश्माला ने सर झुका के अपनी सफेद हील्स देखी, वो साफ थी। कैफ अब खड़े होते हुए टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था। कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है। उसने थक के गहरी सांस ली। अगर तुम जॉब छोड़ना चाहते हो तो अभी से बता दो, मुझे कल हो जाना है। मैं ड्राइवर का बंदोबस्त कर रखूं। मैं क्यों जॉब छोड़ूंगा? टिश्यू से उंगलियां रगड़ते हुए वो हैरत से बोला। इस हरकत से डर के लोग खून देख के डर जाते हैं। मैं ऐसा इंसान से क्यों डरूंगा जो बुज़दिलों की तरह चुप के किसी औरत के घर में खून फेंकता है? वो उसके सामने आ खड़ा हुआ, मरोड़ा हुआ खून आलूद टिश्यू उसके हाथ में था। मैंने आपसे वादा किया था आपकी हिफाजत का। आज मैं आपसे एक और वादा करता हूँ कि मैं उस शख्स को ढूंढ के आपके पास जरूर लाऊंगा। वो संजीदगी से कह रहा था। कुछ था उसके अंदाज में यकीन दिलाने वाला, बेखौफ कर देने वाला, और उसके तने असाब ढीले पड़ने लगे। उसने ममनूनियत से कैफ को देखा, बोली कुछ नहीं। वो अब सोचती नजरों से अतराफ में देख रहा था। कोई सीसीटीवी नहीं है? बताया ना, ये लोग लगवाने नहीं देते। घर के बाहर लगा हुआ है एक सीसीटीवी, उसमें कभी कोई नजर नहीं आया। चौकीदार भी मौजूद है, वो किसी को यूं दाखिल नहीं होने देता। जरूरी नहीं है कि कोई बाहर से आया हो। वो टेरेस की रेलिंग के साथ चलते हुए नीचे देख रहा था। घर की किसी मुलाजिम को पैसे देकर भी ये काम करवाया जा सकता है। नामुमकिन। मामू के मुलाजिम बहुत पुराने हैं, हम सब हर मौके पर उनकी मदद करते हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे? आप इनको पैसे से खुश रखती हैं, वही पैसा कोई ज्यादा दे तो वो उसका काम कर देंगे। पैसा हर वक्त हर एक की जरूरत होता है बॉस, आप उससे किसी को भी खरीद सकते हैं। वो मंडेर से झुक के कुछ देख रहा था। तुम्हें भी? कैफ ठठक के रुका, फिर आहिस्ता से उसकी तरफ पलटा। वो सीने पे बाजू लपेटे संजीदगी से उसे देख रही थी। वो होता है ना मूवीज में, बॉडीगार्ड को सबसे पहले खरीदा जाता है। अगर मेरा स्टाकर फर्श पे गिरे खून की तरफ इशारा किया, तुम्हें खरीदना चाहे तो क्या करोगे? लम्हे भर को टेरेस पे सन्नाटा छा गया। आप किसी से पूछें कि वो बिक सकता है तो वो कहेगा नहीं। मैं भी यही कहूंगा। वक्त के साथ आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं मजाक कर रही थी। तुम जाओ, तुम्हारी राइड आ गई है। नीचे ऊपर बाइक पहुंच चुका था। कैफ ने बाइकर को इशारा किया, फिर वापस उसकी तरफ पलटा। आप परेशान तो नहीं है? यानी इस खून से? नहीं। उसने नफी में सर हिला के कंधे अचकाए। अब मुझे आदत हो गई है। और तुमने कहा ना वो मुझे मारना नहीं चाहता, लेकिन जब वो चला गया तो माला को एहसास हुआ कि खून देख के उसे एक दफा फिर से वहशत शुरू हो गई थी। वो जूते बदल के आई और फर्श साफ करने में जुट गई। पहले खून साफ किया, फिर पाइप लगा के फर्श धोया। जब थक हार के लॉन्च में वापस आई तो मगरिब उतर रही थी। आज फिर से किसी ने टेरेस पे खून फेंका है। माही को मैसेज लिखा, फिर मिटा दिया, फिर लिखा, फिर मिटा दिया, फिर तीसरी बार लिख कर सेंड का बटन दबा दिया। कनाडा के शहर चिलीवैक में माँ बीना और इबाद के घर का वाहिद बेडरूम खामोशी में डूबा था। माही करवट के बल सो रही थी जब मैसेज टोन से उसकी आंख खुली। वो एकदम उठ बैठी, पर वक्त पलट के देखा, इबाद गहरी नींद सो रहा। माही ने छोटे बाल कानों के पीछे अरसे और फोन उठा के खोला। चेहरा मोबाइल की नीली रोशनी से रोशन हो गया। मैसेज पढ़ के उसकी आंखों में फिक्रमंदी उतर आई। उंगलियां टाइप करने लगी। इट्स हिम लिख के भेज दिया। फिर दबे कदमों वो लिहाफ तले से निकली। उसने आधी आस्तीन का गाउन पहन रखा था, बाल खुले थे। वो नंगे पैर लकड़ी के फर्श पे चलती दरवाजे तक आई। जरा से चलने पे भी आहट सुनाई देती थी। लिविंग रूम में टीवी कंसोल के नीचे बने कैबिनेट को वो चंद लम्हे देखती रही, खोले या ना खोले। फिर उसने कोने वाली कैबिनेट खोली, झुक के अंदर से एक स्केच बुक निकाली और सीधी हुई। स्केच बुक के दरमियान में कहीं ग्रेफाइट पेंसिल रखी थी। माही ने पेंसिल वाले सफ़े को खोला। वहाँ एक तस्वीर बनी थी। वो चंद लम्हात उस तस्वीर को देखती रही। माला के साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार ये चेहरा था, उसकी आंखें, उसकी फतहाना मुस्कुराहट। वो इस चेहरे को बिना पलक झपके देख रही थी। अजीब बेबसी और नफरत का एहसास हो रहा था।
उसने स्केच बुक वापस रख दी, फिर दीवार पे नसब घड़ी की तरफ देखा। फजर का वक्त होने को था। वो माला के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि माला उसकी नहीं सुनती थी। कोई माही की नहीं सुनता था। वो सिर्फ दुआ कर सकती थी। वो दुआ करेगी और सब ठीक हो जाएगा। माही की दुआएं अमूमन कबूल हुआ करती थी। ये भी होगी। वो खुद को तसल्ली देते हुए वुजू करने चली गई। कैफ अगली सुबह फजर होते ही उसे लेने आ गया था। पहले उसने माला से दोबारा उसका टेरिस देखने की इजाज़त मांगी। चौकीदार उस नौजवान को ऊपर जाते देख के घूरता रहा, लेकिन उसने परवाह नहीं की। हर तरफ से टेरिस का जायजा लिया, फिर घर के लक्स चेक किए, खिड़कियों का जायजा लिया। जब मुतमय्यन हुआ तो नीचे आया और उनका सफ़र शुरू हुआ। वो लॉन्ग रोड पे ड्राइव नहीं करती थी, क्योंकि कर नहीं सकती थी। उसे मतली होती थी इसलिए वो पिछली सीट पे खिड़की से सर टिका के सोने की कोशिश करने लगी। चलने से कबल उसने माँ को मैसेज कर दिया था। अब हर घंटे बाद माँ का मैसेज आता था, कहाँ पहुंची हो, खैरियत से, सफ़र गुजर रहा है। वो मुस्कुरा के जवाब देती और फ़ोन रख के आंखें मूंद लेती। वो भी खामोशी से ड्राइव कर रहा था। कुछ लिंकियाब क़याम व ताम स्टेशन पे कार अंदर ले जाते हुए कैफ ने पूछा। जवाब नहीं आया तो उसने गर्दन मोड़ के देखा। वो सर सीट की पुश्त से टिकाए आंखें मूंदे हुए थी। सर का तिरछा पड़ा था। एक तरफ से खिंचर से निकलते बालों ने आधे चेहरे को ढांप रखा था। साथ सीट पे टोकरी में नन्हे नन्हे पौधे रखे थे। वो वापस सीधा हो गया। चेहरे पे इस तरह फैला, कर्ब से आंखें बंद कर ली। अब भी वक्त था। वो उसको सब कुछ बता सकता था। वो यहाँ क्यों है और वो उसको कैसे धोखा दे रहा है। वो ये डिजर्व नहीं करती थी कि वो उसे धोखा दे। उसमें और ज़हीर में फ़र्क होना चाहिए था। कैफ ने आंखें खोली। विंड स्क्रीन के पार देखा। दुनिया वैसी ही थी जैसे उसकी आंखें बंद करने से पहले थी। आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं बदल सकती थी। उसे खामोशी से सिर्फ अपना किरदार अदा करना था। उसे उस लड़की से हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं थी। उसे अपने मसले हल करने थे। वो इसको धोखा ज़रूर दे रहा है, लेकिन साथ ही वो उसकी हिफाजत भी करेगा। यूँ हिसाब बराबर हो जाएगा। बस 2 माह वो उसकी नौकरी करेगा और फिर कहीं गायब हो जाएगा। वो इसे भूल जाएगी और मामला दफन हो जाएगा। बस 2 माह और। कश्माला की खिड़की के शीशे पे दस्तक हुई तो उसने चौंक के आंखें खोली, फिर शीशा नीचे किया। कैफ बाहर खड़ा, कॉफ़ी का कप उसकी तरफ बढ़ाए हुए था। रेस्ट एरिया आ गया, वो खुद से बोली और कप थाम लिया। आंखों में अभी भी कुछ कच्ची नींद थी। वो घूम के वापस ड्राइविंग सीट तक आया। अपनी कॉफ़ी उसने कप होल्डर में रखी और सीट बेल्ट पहनने लगा। एक बात पूछूं आपसे, कार स्टार्ट करते हुए बोला। वो कॉफ़ी की घूंट भरते हुए उसे सुनते गई। आपके पास कोई फ्यूचर प्लान तो होगा, दोबारा से अपना काम स्टार्ट करने का प्लान? तुम्हारा मतलब है कामयाबी का नया प्लान? वो बाहर देखते हुए तल्खी से मुस्कुराई। स्कूल से यूनिवर्सिटी तक, किताबों से इंटरनेट तक सब यही सिखाते आए हैं कि कामयाब कैसे होना है। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि नाकाम कैसे होना है? जॉब चली जाए तो क्या करोगे? काम में नुकसान होगा तो क्या करोगे? सिफर से दोबारा कैसे शुरू करोगे? सब हमें कामयाबी के लिए तैयार करते हैं, कोई हमें नाकाम होने के लिए तैयार क्यों नहीं करता? मेरे ख्याल में इंसान का एक्सीडेंट एकदम से नहीं होता, पहले नियर मिसेस होते हैं ताकि हम संभल जाएं। रेड फ्लैग नजर आते हैं। ज़हीर के बारे में भी आपको नजर आए होंगे। वो ड्राइव करते हुए संजीदगी से कह रहा था। कश्माला ने सोचती नज़रों से उसके कंधे की पुश्त को देखा। क्या तुम्हें कर्जों में गिरने से पहले रेड फ्लैग्स नजर आए थे? तंज नहीं कर रही, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम बहुत स्मार्ट लगती हो। फिर इतना नुकसान कैसे कर लिया अपना? कैफ ने गहरी सांस ली। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए स्मार्ट होना काफ़ी नहीं होता। फिर क्या चाहिए होता है? एक आइडिया, एक यूनिक आइडिया। उस आइडिया से मोहब्बत करना, फिर उसके गर्द बहुत मेहनत से अपने काम को तमीर करना। उसकी आवाज़ में जोश सा भर गया था। फिर उस आइडिया को कामयाब करने के लिए एक अच्छी टीम बनाना और बेचने से पहले अपना टारगेट ऑडियंस का इल्म होना। अपने काम को क्वालिटी और वैल्यूज़ पे कभी समझौता ना करना। वो स्टेयरिंग व्हील पे हाथ जमाए बोले जा रहा था और वो उंगलियों पे गिन रही थी। मगर ये सब काफ़ी नहीं होता बॉस। बिजनेस में तरक्की यहाँ से आती है। एक हाथ स्टीयरिंग से हटा के अपनी पेशानी पे दस्तक दी। आपकी पेशानी की बहत से कश्माला ने ताज्जुब से आबरू उठाई। यानी किस्मत? उसने तायद में सर हिलाया। तुम कह रहे हो कि इंसान की किस्मत उसकी मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी है? मेहनत और बिजनेस की समझ बूझ ये लाजिम है, लेकिन इसके बावजूद भी हम फेल हो जाते हैं क्योंकि इस चीज़ में हमारा बहत नहीं होता, लेकिन वो किसी दूसरी चीज़ में ज़रूर होता है। आप अगर बहत रेस्टोरेंट में नहीं है तो शायद वो किसी और काम में हो। आप बताएं, क्या मैं स्टंट पोजीशन के लिए हायर कर लिया गया हूँ? जानते हो तुम में और मेरे पुराने ड्राइवर्स में क्या फ़र्क है? वो मेरी तरह स्ट्रेट स्मार्ट नहीं थे। वो इतना बोलते नहीं थे और चेहरा मोड़ के बाहर देखने लगी। उससे बेहतर असिस्टेंट कश्माला को नहीं मिलने वाला था, लेकिन अभी वो इस बात का एतराफ़ नहीं करना चाहती। कश्माला, मईद, मबीना और खूरे जहां का घर मुबीन मंजिल कहलाता था। शहर के एक पोश इलाके में बना एक कनाल का 2 मंजिला घर, जिसके लॉन में बोगनवेला
के दरख्त हर दीवार के साथ उगे थे। घर का कोई कोना गमलों और बैलों से खाली नहीं था। वो कार से निकली और आंखें बंद करके अपने घर की फिजा में गहरा सांस लिया। कहते हैं इंसान मोहब्बत और सुकून की तलाश में सारी दुनिया का सफर करता है, मगर वो उसके घर पे उसका मुंतजिर होता है। सलीम गेट बंद करके उस तरफ आया तो उसने कैफ की तरफ इशारा किया, जो कार ट्रंक से उसका सामान निकाल रहा था। ये मेरा ड्राइवर है कैफ, इसको उसका कमरा दिखा दो और खाना खिला दो। फिर वो आगे आई, दाखिली दरवाज़ा खोला। सामने राहदारी थी जो लॉन्च में खुलती थी। बरसों पुरानी आदत थी, इसे मालूम था जब वो राहदारी का कोना मुड़ेगी तो एक तख्त नजर आएगा, उस तख्त पे माँ बैठी हुई होंगी। कश्माला के कदम आगे बढ़े, राहदारी का कोना अबूर किया और सामने वही पुराना मंजर नजर आया। लॉन्च में सोफे भी थे, लेकिन हूरे जहां बेगम तख्त पे बैठी थी, एक टांग सीधी लंबी किए दूसरी अंदर की तरफ मोड़े, घुटने के साथ सब्जी की थाल रखी थी। सर पे दुपट्टा था जो एक कान से पीछे अरसा हुआ था। वो चेहरा झुकाए आलूओं के कतले काटे जा रही थी। बड़े बड़े सफेद बाजू आस्तीनों से झलक रहे थे। दाएं कलाई में सोने की चूड़ियां थी। हूरे जहां बेगम फरबा खतून थी, रोहदार और दबंग सी, लेकिन साथ ही कुछ बहुत नरम और मुलायम सा था उनमें। चेहरा सफेद गुलाबी सा था, नाक में हीरे की लौंग थी, सब्ज आंखों के गिर्द झुर्रियां थी, पेशानी और कलमों से स्याह सफेद बाल झलकते थे। बढ़ती उम्र ने उनके हुस्न को गहराया नहीं था, बल्कि मजीद बावकार कर दिया था। आहट पे उन्होंने सर उठा के देखा, चेहरा खिल उठा, सब्ज आंखों में रौनक दौड़ गई। मेरी बेटी आ गई। छुरी एक तरफ रखी, घुटनों पे हाथ रख के पैर नीचे उतारे, फिर पैरों से जमीन पे जूते तलाश किए। उनकी फरबा खातून थी, झुक नहीं सकती थी, तब तक वो उनके करीब आ पहुंची थी। मेरी प्यारी माँ। उसने पर्स एक तरफ फेंका और झुक के उनके गले से लग गई। माँ काफी फरबे थी, वो उनके मुकाबले में दुबली पतली सी। माँ ने उसका चेहरा दोनों तरफ से चूमा। उसके चेहरे पे इतनी खुशी थी कि बयान से बाहर थी। मेरी बेटी कैसी है? अच्छा किया वापस आ गई। उसने अलग हो के उसका चेहरा देख के बोली, उस जहीर को तो छोड़े इसको माँ। वो माँ से अलग हो के नरमी से बोली। फिर देखा साथ जो कि बेबख्त भी बैठी थी, वो जो कि उससे भी मिली। बख्त भी अधेड़ उम्र औरत थी, बालों में तेल लगा के कस के चोटी बनाए, वो कानों में सुनहरी बालियां पहने हुए थी। वो माला को मिली तो बेख्तियार दुआ दी। बख्त भी जब मिलती ऐसी ही दुआएं दिया करती थी। बख्त बीबी कितने बरसों से उनकी मुलाजमा थी, अब तो माला को गिनती ही भूल गई थी। बस इतना याद था कि उसका शौहर मरा था तो वो 5 बच्चों के साथ उनके सर्वेंट क्वार्टर में आई थी। अब उसके बच्चे जवान हो के उस आशियाने से उड़ चुके थे। एक बेटा सलीम चौकीदार भी था और सौदा सल्फ भी लाता था। बाकी बेटियों की शादी हो गई, लेकिन बख्त बीबी और माँ का साथ कायम था। सफर ठीक गुजरा, रास्ते में मतली तो नहीं हुई। वो माँ के कंधे से सर टिकाए बैठी थी और वो उसके बाल कान के पीछे अड़स रही थी। नहीं माँ, ड्राइवर साथ लाई हूँ। तभी राहदारी में आहट हुई। माँ ने चौंक के देखा, कैफ हाथ में टोकरी लिए खड़ा था। वो सीधी होके बैठी। प्लांट्स कहाँ रखूं? मियाँ तुम कौन हो? अंदर कहाँ चले आ रहे हो? पूरे जहां बेगम के माथे पे बर्फ पड़े। 2 उंगलियों से इशारा किया, पीछे। सॉरी मैं। वो इस जुमले के लिए तैयार नहीं था। मुतजब्जब सा चंद कदम पीछे हुआ। मैं कैफ जमाल हूँ, कश्माला बीबी का ड्राइवर। तुम्हारी बीबी ने तुम्हें बताया नहीं है कि ड्राइवर घरों के अंदर नहीं आते? और पीछे 2 उंगलियां झटक के कहा। वो नासमझी के अंदाज में मजीद पीछे हुआ। कश्माला ने मुस्कुरा के आंखों से इशारा किया। कैफ ने टोकरी वहीं रखी और तेजी से बाहर निकल गया। ये क्या तुम रंग बिरंगे ड्राइवर रहती हो? माँ ने हफ्की से उसे देखा। वो बेख्तियार हंस दी। बाजी ये ड्राइवर तो नहीं लगता। बख्त भी लॉन्च की दीवार घेर खिड़की को देख रही थी। वहाँ कैफ सलीम उनके साथ जाता दिखाई दे रहा था। ये मेरा असिस्टेंट भी है माँ, बताया था ना। मैं नया बिजनेस सेट करने लगी हूँ। माँ ने सब आंखों में अफसोस सा भरा तासफ से सर हिलाया। क्या करोगी इतना पैसा कमा के माला? और यहीं पे माँ और उसका एहतलाफ शुरू होता था। माँ, ये 21वीं सदी है, औरत सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करती, उसे अपना भी कुछ चाहिए होता है ताकि उसकी सैनिटी बरकरार रहे। वो खुद को घर के चूल्हे में जाया ना करे। हुरे जहां बेगम की तरह माँ के कान के पास शरारत से झुकी। उसकी आंखों में हफली उतरी। अरे हट बदतमीज, तुम्हें लगता है मैंने खुद को जाया किया है? सर चटक के छुरी उठा ली और आलू के खटखट टुकड़े करने लगी। अब प्रोटोकॉल खत्म था। माला अब पुरानी हो चुकी थी। माँ उससे ज्यादा बच्चों को प्रोटोकॉल देने की आदी नहीं थी। जाया नहीं किए तो कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं किया। मास्टर्स होल्डर थी, मगर बच्चों में लगी नहीं। आपका सारा दिन इसी फिक्र में गुजरता है कि आपके बच्चों ने खाना खाया या नहीं। अब वो बच्चे अपनी अपनी जिंदगियों में चले गए हैं। अगर कोई कैरियर या मुश्किल अपनाया होता तो आज फरागत में आपके पास कुछ करने को होता। आप भी सब्जी काट रही हैं जो वक्त भी काट सकती हैं। यही फ़र्क है आपकी और हमारी जनरेशन में। आप चूल्हे से नहीं निकलती और हम दुनिया फतह करना चाहते हैं। वक्त तो अपनी माला बीबी को बताओ कि हर इंसान दुनिया में अपना किरदार अदा करने आता है। किसी का किरदार दुनिया फतह करना होता है और किसी का उस फाते की तरबियत करना। मगर माला मुस्कुरा के शानिया झुका के उठ गई है। अगर आपने 30 साल पहले कोई बिजनेस शुरू किया होता तो आज आप भी एक बिजनेस वूमेन होती, कबीरा ताई की तरह। माँ ने अपनी
चप्पल की तलाश में पैर ज़मीन पे मारा वो खसती हुई बैग उठा के अपने कमरे की तरफ चली गई। माँ हफ़ी से बड़बड़ाते हुए सब्ज़ी की तरफ मुतवज्जा हो गई। कबीरा ताई हमारी कहानी का एक अहम किरदार हैं। वो अब्बा की फर्स्ट कज़न की बीवी थी, एक खूबसूरत, दौलतमंद और बाअसर ख़ातून। उसके अलावा जिन खसलतों से वो पहचानी जाती थी उनमें तकब्बुर, बदज़बानी और मुनाफ़िक़त सरफ़हरिस्त थी। बड़ी महफ़िलों में दूसरों का तमस्खर उड़ाना तो लाजिम था, किसी की बदसूरती तो किसी की गुर्बत का मजाक। खुद हसीन थी, रईस थी, रिश्तेदार उनके गिर्द मंडलाते रहते थे। बेटे वाले उनकी बेटी की वजह से और बेटी वाले उनके बेटे में दिलचस्पी रखते थे, जो माँ की तरह मगरूर मशहूर था। इतना मगरूर कि वो कभी पाकिस्तान नहीं आया था, ना अपने रिश्तेदारों से मिला था। उनका बेटा जब 3-4 बरस का था तब वो लोग इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे। कई बरस बाद उनकी फैमिली खुद तो पाकिस्तान सेटल हो गई, लेकिन उनका बेटा लौट के नहीं आया। ना उसे कभी किसी ने देखा, ना कोई उससे मिला। बस कबीरा ताई थी जो हर महफिल में बैठ के अपने बेटे की कामयाबी और वजाहत के किस्से सुनाया करती थी। अपने बेटे पे उनको बहुत ही मान था। माही का कहना था कि उनका बेटा भी इन्हीं की तरह होगा, साइको केस। कबीरा ताई को कोई नफसियाती आर्जा भी था। वो लोगों को अपने गिर्द जमा करके तस्कीन महसूस करती थी। किसी भी रिश्तेदार के घर खुशी गमी होती तो फ़ौरन पहुंच जाती, महंगे गिफ्ट्स, भारी सलामियाँ, फिर उसी रिश्तेदार के घर बैठ के बाकी ख़ानदान का मजाक उड़ाती। सारे ख़ानदान में अगर कबीरा की किसी से नहीं बनती थी तो वो हूरे जहाँ बेगम थी। माँ जब ब्याह के इस ख़ानदान में आई तो कबीरा ने भी उनको भी अपनी दौलत से दबाने की कोशिश की, लेकिन हूरे जहाँ उन औरतों में से नहीं थी जिनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, या वो किसी की दौलत से मुतासर होकर अपनी आवाज़ खो देती है। और ये जहाँ अपने आप में काफ़ी थी, हसीन भी थी और पढ़ी लिखी भी। उनको किसी किस्म का एहसास कमतरी न था। पहली दफ़ा जब बड़ी महफिल में उन्होंने कबीरा को किसी का तमस्खर उड़ाते और ख़ानदान वालों को मुस्कुरा के सुनते देखा तो टोक दिया, देखो कबीरा, सबकी सूरतें शक्लें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, खूबसूरत हैं, उनकी खूबसूरती ही उनका इम्तिहान होता है। ऐसे गुरूर ना किया करो, अल्लाह को ये नहीं पसंद। ऐसा कई मौक़ों पर हुआ, यहाँ तक कि एक महफिल में जब कबीरा अपनी नंद का जिक्र करते हुए कुछ कहने लगी तो हूरे जहाँ ये कहते हुए उठ गई कि मैं ऐसी महफिल में नहीं बैठूंगी जहाँ किसी का मजाक उड़ाया जाए। मैंने अल्लाह को जवाब देना है। महफिल में दूसरे लोग भी दबी दबी आवाज़ में बोलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सब तब बितर गए। वो कबीरा जिसके आगे सारा ख़ानदान बिछ जाता था, उसको 4 सदा की आम से घराने के हाउसवाइफ टोक के उठ गई थी। कबीरा बेगम की ऐसी तौहीन किसी ने भी ना की थी। मईद का कहना था कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कबीरा थोड़ी साइको भी थी। ऐसे लोगों को हमेशा एक विलन की तलाश होती है जिसको वो अपनी बेसुखूनी के लिए इल्ज़ाम दे सकें। इसलिए इस दिन से कबीरा ने पूरे जहाँ का साथ बैर पाल लिया। ऐसे चंद वक़्त और भी हुए। तब कबीरा इंग्लैंड में रहती थी, वहाँ बैठ के भी सारे पाकिस्तान की खबरें रखती, साल में 3-4 चक्कर लगा भी लेती। उन्होंने ख़ानदान में मशहूर करना शुरू कर दिया कि पूरे जहाँ उससे जल्दी है। 1-2 इल्ज़ाम भी लगाए माँ पर। कोई 9-10 साल पुरानी बात है जब कबीरा और माँ का इसी तरह एक महफिल में फिर से टकराव हो गया। कबीरा ने किसी की बेइज्जती की और माँ ने सबके सामने उस गरीब रिश्तेदार की साइड ली। उस दिन के बाद कबीरा और माँ की बोलचाल ख़त्म हो गई। वो दोबारा महफिलों में एक दूसरे को जब भी देखा, माँ फिर भी सलाम कह देती, लेकिन कबीरा घमंड और नफरत से सर मोड़ कर गुजर जाती, जैसे सुना ही नहीं। माही माँ को मना करती थी, वो जवाब नहीं देती, तो आप क्यों सलाम करती हैं? लेकिन माँ बड़ी ही सुकून से कहती कि देखो, अल्लाह ने हम पे सलाम फ़र्ज़ किया है, बैठ के गप्पे मारना फ़र्ज़ नहीं किया। मैं बस इतना कर रही हूँ जितना मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। अब इतने बरस हो गए हैं। कबीरा पाकिस्तान वापस आ गई, लेकिन दोनों की ताल्लुकात बहाल नहीं हुए थे। कबीरा का नाम अब उनके लिए एक मजाक था। माला माँ को तंग करने के लिए उसका नाम लेती। माही को जब किसी इंसान को शदीद बुरा कहना होता तो वो उसको कबीरा से मिला देती। रहा महिद, वो जब उसकी माही से लड़ाई होती तो वो कहता, पहले ज़माने में मेल होती थी, अब ईमेल होती है। ऐसे ही पहले ज़माने में कबीरा थी और अब कबीरा आई होती है। और वो तुम हो माही। वो फ्रेश होकर कमरे से निकली तो मईद किचन के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में इसे पकड़े खा रहा था। उसे देख के हंस दिया। फिर कैसा मजाक किया ज़हीर ने आपके साथ? वो करीब आया और बंद मुट्ठी इसकी तरफ बढ़ा दी। माला ने हंस के अपनी बंद मुट्ठी उसकी मुट्ठी से टकराई। तमीज़। फिर से पैर तक मईद को देखा। अपनी सुनाओ, माँ को टाइम देते हो या फ़ोन पे अपनी दूसरी माँओं के साथ लगे रहते हो? वो जिम गया। मेरी माँ इस वक्त सिर्फ जनरल सर्जरी है, ओके। मईद निकलते हुए कद का नौजवान था, क्लीन शो, माथे पे कटे हुए बाल, माही जैसी बूढ़ी आंखें, चेहरे पे हर वक्त सजी मुस्कुराहट और कानों में हेड्स फ्री। वो जनरल सर्जरी में ट्रेनिंग कर रहा था। उस घर उसके लिए होटल की तरह था जहाँ वो सिर्फ सोने आता था।